بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں ترجمہ اور آواز ڈاکٹر ساجد صدیقی. مکمل بھگوت گیتا کا اردو زبان میں ترجمہ شریمد بھگوت گیتا، یعنی امن، سلامتی اور سکون دینے والی ہدایات پر مبنی خدا کا بیان. چوتھا باب، چوتھا ادھیائے. رسولوں سے کلام کرنے کے لیے خدا کے دنیا میں آنے یا جنم لینے کی حقیقت کو خدا کے سوائے کوئی نہیں جان سکتا. خدا کی عبادت سے جڑے رہنے کا علم یعنی یوگ یا وحی الہی اور رسالت کی حقیقت، خدائی کلام کے مقاصد، خدا کے اوتار لینے اور پنرجنم کی حقیقت. کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس خدا کی عبادت کے کبھی تبدیل نہ ہونے والے یعنی دین قیم کے علم کو ویوسوت یعنی دیش سے نکالے گئے یعنی آدم سے بیان کیا. ویوسوت نے منو یعنی نوح تک اس علم کو پھیلایا اور منو نے اکشواکو تک اس علم کو آگے بڑھایا. اے پرنتپ یعنی ارجن، اس طرح خدا کی عبادت کا عظیم علم سلسلہ بسلسلہ حاصل ہوتا رہا. اس علم کو حکومت کرنے والے رسولوں نے بھی جانا. یہ علم دنیا میں بعد کے زمانے میں بکھر کر برباد ہونے لگا. اسی لیے بلا شبہ میرے ذریعے کہے گئے صوف اولا کے اس انتہائی قدیم خدا کی عبادت سے جڑے رہنے یعنی یوگ کے اسی علم کو تم سے آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ تم میرے ولی ہو، میرے احکامات کی اطاعت کرنے والے عابد یعنی بھکت بھی ہو، اور بلا شبہ اس طرح اس روحانی اور عظیم راز یعنی غیب کی باتوں کو جاننے کے طالب بھی ہو. ارجن نے کرشن سے سوال کیا، ویوسوت یعنی دیش سے نکالے گئے آدم کی پیدائش پہلے ہے اور اے کرشن آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی ہے. اس طرح یہ میں کیسے سمجھوں کہ اے کرشن تم نے اسے سب سے پہلے اپنی زبان سے خدا کی کہی ہوئی باتیں بیان کی. کرشن نے کہا، خدا کہہ رہا ہے کہ اے ارجن، میری یعنی مجھ خدا کی کئی بار آمد اور تمہاری کئی بار عالم ارواح میں پیدائش ہو چکی ہے. ان تمام آمد اور پیدائش کی حقیقت کو اے پرنتپ صرف میں خدا جانتا ہوں، انہیں تم کبھی نہیں جان سکتے. حالانکہ میں تمام مخلوقات کا مالک، حاکم اور پالنے والا ہوتے ہوئے بھی انسانوں کی طرح پیدا نہ ہونے والا اور لافانی خدا ہوتے ہوئے اپنی سمجھ میں نہ آنے والی معجزاتی یا فریبی روحانی قدرت کے ذریعے اپنے آپ کو دنیا میں قائم کر کے رسولوں سے کلام کرتا ہوں. اے بھارت یعنی ارجن، بے شک جب جب دین میں کمی اور گراوٹ ہونے لگتی ہے اور بے دینی بڑھنے لگتی ہے، اس وقت میں از خود دین کا علم عطا کرنے کے لیے آتا ہوں، صالح لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، مفسدوں اور بدکاروں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور دین کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے. میں عہد در عہد رسولوں سے کلام کرنے کے لیے یا تبادلہ خیال کرنے کے لیے آتا ہوں. اے ارجن، میری دنیا میں آمد اور میرے اعمال سبھی روحانی یعنی نہ دکھائی دینے والے غیر مادی ہیں. اس طرح جو کوئی اس حقیقت کو جان لیتا ہے وہ جسم کو چھوڑنے یعنی مرنے کے بعد جہنم میں بار بار پیدائش نہیں پاتا، بلکہ وہ جنت میں مجھے پاتا ہے. توحید، خدا کے اوصاف اور خدا کے عمل کرنے کا طریقہ. دیوتا پرستی کے
शिर्क की वजूहात। आमाल सालिहा का अज्र मखलूक और देवताओं यानी फरिश्तों से ना चाहो। पैदा होना या आमद या आना, इन सब के माना है जन्म, सरजामी, संभवामी। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि बहुत सारे लोग इल्म की रोशनी से पाक होकर लालच, खौफ और गुस्से से निजात पाकर मुकम्मल तौर पर सिर्फ मुझे खुदा को याद करते हुए मेरी पनाह लेकर मुझे हासिल करते हैं। ऐ पार्थ यानी अर्जुन, बेशक जो लोग जिस तरह से मेरी इबादत करते हैं या मेरी पनाह में आते हैं उसी तरह से मैं उन्हें अजर देता हूँ। इसलिए नेक इंसान हर तरह से और हर वक्त सिर्फ मेरे रास्ते की पैरवी करते हैं। बेशक बहुत सारे इंसान ये चाहते हैं कि इस दुनिया में ही उनके अमाल का अच्छा नतीजा पैदा हो, इसलिए इस दुनिया में जल्दी से अज्र और कामयाबी की उम्मीद में तमाम अमाल को देवताओं यानी फरिश्तों की खुशनुदी के लिए करते हुए उनकी इबादत करने लगते हैं। नव इंसानी की अलग अलग काम करने की चारों फितरी सलाहियतें मेरे जरिए ही तख्लीक की गई हैं। इस तख्लीकी अमल को करने वाला मैं अकेला हूँ, देवता नहीं हैं, और बिलाशुबा मुझको लाफानी ज़ात और इंसानों की तरह काम न करने वाला मानकर मेरी इबादत करो। आमाल मुझे अपनी तरफ राग़िब नहीं करते और मैं मखलूक या देवताओं से आमाल के सिले और अज्र की तवक्का बिल्कुल नहीं रखता। इस तरह जो मुझे या मेरे काम करने के तरीके को जान लेता है वो भी मखलूक या देवताओं से आमाल के अज्र की तवक्का के चक्कर में कभी नहीं फंसता। माजी के पुराने ज़मानों में भी इसी तरह आमाल की हकीकत को जानकर आमाल करते हुए बिलाशुबा दुनियावी और उखरवी खौफ गम से निजात पाने वालों ने निजात पाई है। इसीलिए माजी के पुराने ज़माने के लोगों के ज़रिए जिस तरह बेगरज आमाल किए गए हैं, तुम भी उन्हीं की तरह बेगर्जी से आमाल को करो। मारूफ और मुनकर आमाल। हर अमल का इन्हिसार खुदा की मर्जी पर है। शिर्क को तर्क करके मखलूक से अज्र की तवक्का को छोड़कर हर अमल खुदा की खुशनुदी के लिए करने वाले को दुनिया में सुकून और आखिरत में जन्नत मिलेगी। जिद्दैन पर सब्र करते हुए आमाल सालिहा करना। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि अमल करना क्या है और अमल ना करना क्या है। इस तरह सोचते हुए असलाफ भी इसका तायुन करने में उलझ गए। अब मैं तुम्हें उन आमाल को बताऊंगा जिनको जानकर तुम्हें मसाइब और बुरी बातों से निजात मिल जाएगी। बेशक नेक आमाल यानी मारूफ को भी समझना चाहिए और अमल ना करने को भी समझना चाहिए। इसी तरह बुरे अमाल यानी मुनकर को भी समझना चाहिए, क्योंकि अमल के फ़लसफ़े की गहराई में पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। हर अमल खुदा की मर्जी से होता है। ये सोचते हुए जो हर अमल करने में अमल ना करने को और जो अमल ना करने में भी अमल करने को देखता है, वो हकीकत में तमाम अमाल को कर रहा है और खुदा की इबादत में हकीकी तौर पर लगा हुआ है, और वो इंसानों में दानिश्वर और अक्लमंद भी है। जिस शख्स ने अपने हर अमल की शुरुआत से ही ख्वाहिश परस्ती को निकाल देने का अहद कर लिया हो और जिसके तमाम अमाल इल्म की आग में तप कर चमक उठे हो, उसको अक्ल वाला अलिम कहते हैं। मखलूक से अमाल के अज्र की तवक्का को छोड़कर मखलूक के सहारे न जीते हुए हमेशा पुरसुकून और मुतमईन रहकर तशफ़ी बख्श ज़िंदगी गुजारने वाला बिलाशुबा तमाम अमाल को अंजाम देते हुए भी इस तरह सोचता है कि वो कुछ नहीं करता बल्कि सब कुछ खुदा करता है।
मखलूक से तवक्का न रखकर, नफ्स और कल्ब की ख्वाहिशात पर काबू रखकर, तमाम ऐश व आराम के सामानों और मिल्कियत को छोड़कर जो सिर्फ और सिर्फ जिस्म की बका और सेहत के लिए आमाल करता है, वो कभी बेचैनी, उलझन और गुनाहों का शिकार नहीं होता। जो शख्स खुद बखुद मिलने वाले फायदों पर कनात करके मुतमईन रहते हुए जिद्दैन यानी कामयाबी और नाकामी पर सब्र करते हुए, हसद से भी दूर रहते हुए अगर तमाम आमाल को फर्ज समझकर अंजाम देता है, तो वो मखलूक या देवताओं से आमाल के सिले की तवक्का के चक्कर में कभी नहीं फंसता। ऐसा शख्स एक खुदा के साथ मखलूक या देवताओं को शरीक बनाने की राह से निजात पा चुका है। वो जब अपने अक्ल को इल्म की रोशनी में खुदा के ईमान पर कायम करता है और तमाम अमाल को खुदाई अहकामात के मुताबिक सिर्फ खुदा की खुशनुदी के लिए करता है, तब वो मुकम्मल तौर पर खुदा से जुड़ जाता है। खुदा को सबसे आला मानकर, खुदा से दुआ करते हुए, खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए एक खुदा में यकसू होकर खुदा की खुशनुदी के लिए तमाम आमाल को करने वाला बिलाशुबा खुदा की रहमत के जरिए खुदा की जन्नत के मुकाम को हासिल करने के काबिल हो जाता है। खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए खुदा की नजर किए जाने वाले आमाल सालिहा यानी यज्ञ की किस्में। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि बेशक कुछ मोमिन खुदा की इबादत से जुड़ने के लिए वही इलाही के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ खुदा को सबसे आला मानते हुए मुकम्मल अहकामात की अताअत करते हैं, और बेशक कुछ लोग खुदा की खुशनुदी के लिए कुछ मखसूस आमाल सालिहा को खुदा की नजर करते हैं जो मंदरजा झेल हैं। कुछ लोग ना बोलकर सुनने के अमल से शुरुआत करने वाले, ख्वाहिशात पर काबू पाने वाले आमाल को अफजल मानकर उसे खुदा की खुशनुदी के लिए खुदा की नजर करते हैं, और कुछ लोग खुदा की तस्बीहात से शुरुआत करके ख्वाहिशात को लुभाने वाली अशिया को अफजल मानकर उन चीज़ों को खुदा की नजर करते हैं। कुछ लोग इबादत के जरिए तमाम ख्वाहिशात के लिए किए जाने वाले अमाल और वो अमल जो इंसानी बका के लिए हैं, उन पर और अपने मन पर काबू रखकर इल्म की रोशनी को अफजल मानकर उन्हें खुदा की नजर करते हैं। कुछ लोग खुदा की खुशनुदी के लिए दौलत को पेश करते हैं। कुछ लोग खुदा की खुशनुदी के लिए खुदा की राह में जद्दोजहद या जिहाद को पेश करते हैं। कुछ लोग खुदा की खुशनुदी के लिए इबादत को पेश करते हैं। इसी तरह कुछ वेदों को पढ़ने वाले खुदा की खुशनुदी के लिए इल्म को पेश करते हैं, और कुछ लोग खास तौर पर वादे और अहद को तेजी से पूरा करने की कोशिश का अमल भी खुदा को पेश करते हैं। कुछ लोग खारिज होने वाली सांस को दाखिल होने वाली सांस में और दाखिल होने वाली सांस को खारिज होने वाली सांस में करके खुदा की नजर करते हैं। इस तरह कुछ लोग दाखिल होने वाली सांस और खारिज होने वाली सांस की रफ्तार को रोक कर दाखिल होने वाली सांस को लंबा करके एक खुदा में यकसुई की हालत यानी समाधि में आ जाते हैं, और कुछ लोग खुदाई कवानीन के मुताबिक गेजा लेकर दाखिल होने वाली सांस को दाखिल होने वाली सांस में रख कर खुदा की खुशनुदी के लिए खुदा की नजर करते हैं। बेशक ये तमाम मंदरजे बाला अशखास खुदा की खुशनुदी वाले आमाल सालिहा को जानते हैं, और इन्हीं आमाल सालिहा की वजह से दुनिया में गुनाहों और तकलीफों से छुटकारा पाते हैं, और मरने के बाद आमाल सालिहा के सिले और अजर के तौर पर खुदा जो हमेशा कायम रहने वाला है, उसकी तख्लीक की हुई बेमौत वाली जन्नत का मजा पाते हैं। ऐ कुरु खानदान में अजीम यानी अर्जुन, एक खुदा की खुशनुदी के लिए आमाल सालिहा ना करने वालों को इस दुनिया में सुकून नहीं है, तो फिर उस आखिरत की दूसरी जिंदगी में उन्हें कहां से सुकून मिलेगा। इस तरह वेदों में बहुत सारे अक़साम के खुदा की खुशनुदी वाले आमाल सालिहा का जिक्र किया गया है। ख़ास तौर पर अमल करने से ही
ان आमाल की नशोनुमा होती है, ये अच्छी तरह समझ लो। इस तरह इन तमाम आमाल सालिहा के फ़लसफ़े को जानने से तुम खौफ व गम और मखलूक से सिले की तवक्का में फंसने से निजात पा जाओगे। इल्म दीन के मुताबिक आमाल सालिहा करना यानी ज्ञान यज्ञ सबसे अफजल है। खुदा के दिए हुए इल्म दीन यानी ज्ञान यज्ञ की और उलमा की अहमियत, इल्म दीन के फायदे। इल्म दीन की वजह से मोमिन दुनिया में ज़हनी सुकून और आखिरत में जन्नत का दायमी सुकून पाता है। कृष्ण ने कहा, खुदा कह रहा है कि ऐ परंतप यानी अर्जुन, दुनियावी चीज़ों के ज़रिए खुदा की खुशनुदी हासिल करने से अफजल खुदा के दिए हुए इल्म के मुताबिक अमल करके खुदा की खुशनुदी हासिल करना है। क्योंकि ऐ पार्थ, तमाम आमाल की हकीकी तकमील का इन्हिसार खुदा के दिए हुए इल्म दीन की मुकम्मल आगही पर है। सच्चे आलिमों के कदमों में बैठकर उनकी खिदमत करके उनसे नरमी से सवालात करो और उस एक खुदा को जानने की कोशिश करो। वो तुम्हें इल्म दीन की रहनुमाई देंगे, क्योंकि ये वो आलिम हैं जो हक की बसीरत रखते हैं। इस तरह ऐ पांडव यानी अर्जुन, इस दीन के इल्म को जानकर तुम दोबारा रिश्तेदारों, दीगर इंसानों और मखलूकात की बेजा मोहब्बत यानी मोह में नहीं पड़ोगे। इस सच्चे इल्म से तमाम मखलूकात को खुदा से या दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ मेरे ज़रिए ही तख्लीक किया हुआ देखोगे। अगर तमाम गुनाहगारों में तुम सबसे बड़े गुनाह के काम करने वाले हो तो भी बेशक इस इल्म की कश्ती के ज़रिए गुनाहों के समुंदर को बिला रुकावट पार कर लोगे। ऐ अर्जुन, जिस तरह ईंधन को जलती हुई आग राख कर देती है, उसी तरह इल्म की रोशनी तमाम गुनाह के कामों को राख कर देती है। बेशक इस दुनिया में इस इल्म दीन के मुकाबले कोई भी चीज़ गुनाहों से पाक करने वाली नहीं है, क्योंकि इस इल्म के ज़रिए वो गुनहगार अज खुद मुकम्मल तौर पर खुदा के ईमान से जुड़ जाता है और हर वक्त वो अपने आप में सुकून और खुशी महसूस करता है। खुदा पर ईमान रखने वाला यानी श्रद्धावान इस इल्म को हासिल करके ख्वाहिश पर काबू पाकर इसी इल्म के ज़रिए उस सबसे आला खुदा को पा लेता है। फिर बहुत जल्द दुनिया में सबसे आला ज़हनी सुकून और सलामती को भी पा लेता है और मरने के बाद दायमी सुकून और सलामती वाले मुकाम यानी जन्नत को भी पा लेता है। एक खुदा पर ईमान न रखने वाला काफिर और जाहिल और खुदा के मुतालिक शक करने वाला इंसान जहन्नम में गिर जाएगा। इस शक्की इंसान को न तो इस दुनिया में और न ही इस दुनिया से परे वाली आखिरत की जिंदगी में गरज के कहीं भी सुकून नहीं है। ऐ धनंजय, इल्म के जरिए शक को काट देने वाला, खुदा के ईमान पर कायम रहने वाला, इबादत के जरिए आमाल के सिले को छोड़ देने वाला, आमाल के सिले की तवक्का में कभी नहीं फंसता। एक खुदा पर ईमान ना रखने वाला काफिर यानी अश्रद्धावान और जाहिल और खुदा के मुतालिक शक करने वाला इंसान जहन्नम में गिर जाएगा। इस शक्की इंसान को न तो इस दुनिया में और न ही इस दुनिया से परे वाली आखिरत की जिंदगी में गरज के कहीं भी सुकून नहीं है। चौथा बाब, चौथा अध्याय खत्म हुआ।